Hello and welcome to GKC's English Bulletin. I am Myra. Let's begin with the headlines first. Bullets fired on the bank's car in Kunjwani. Police is investigating the matter. Another batch of Shri Amarnath Yatra left. Huge enthusiasm among the devotees. Candidates of Finance Account Assistant once again protested, demanded for release of selection list. And BJP General Secretary Ashok Kaul visited Kupwada, held a meeting with workers. Now news in detail. A case of firing has come in Kunjwani area of Jammu city on Tuesday. It is being told that there was firing on the car of Grameen Bank. It is alleged that the bank officials had arrived for the recovery of the loan when there was firing from the defaulter's side. The windows of the car were broken by this. There is no news of any casualty in the case so far. As soon as the information was received, the police team reached the spot and registered a case and started further investigation. तो बता दें कि यहाँ पर कॉलेज है और थोड़ी आगे लेकर चलते हैं जहाँ से जो है राउंड्स को उठाया गया है, जहाँ से जो है वो गोलियाँ उनको उठाया गया, यही वो एरिया है जहाँ से कुछ लोगों को जो है वो गोलियों का हमला। Another batch of Shri Amarnath Yatris left today amidst tight security arrangements. A large number of people were involved in this group. There was a lot of enthusiasm among the devotees on this occasion. They appreciated the arrangements made by the administration and said that they feel very happy to be here and hopes that further journey will be smooth and safe. आज दोपहर में यात्री निवास पहुंचा हूँ। यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। आने वाले यात्रियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर आएँ, जो प्रोटोकॉल बताया जाए उसका पालन करें, उसके अनुसार कार्रवाई करें, कोई दिक्कत नहीं। मैं दर्शन के लिए आया हूँ और हम लोग अब बालटाल के लिए रवाना होने वाले हैं। काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, सीआरपीएफ और काफ़ी यहाँ की जो लोकल पुलिस है उनमें काफ़ी सपोर्ट है यहाँ का और काफ़ी प्रोटेक्शन है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है और सभी लोग सुरक्षित हैं। भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग सकुशल जाए और सकुशल वापसी आएँ और हम सब लोगों की यात्रा सफलपूर्वक रहे। हम फोन लगाने वाले थे तुम्हें। जय भोलेनाथ। आने वाले लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके आप अपनी सेफ्टी से चलें और यहाँ का पुलिस प्रशासन और खासकर आर्मी के जो भी इंस्ट्रक्शन है उन इंस्ट्रक्शनों को फॉलो करें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई व्यवधान ना आए अपनी यात्रा में। और अपना जो भी है मेडिकल रिलेटेड या जो भी चीज़ें हैं वो आराम से अपने साथ में लेकर आएँ, पहाड़ों पर आराम से चलें, जल्दबाजी ना करें। बस यही सब कुछ चीज़ें थोड़ी अपनी इंस्ट्रक्शन देना है, बाकी तो कुछ नहीं है। गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ। यहाँ पर सुविधा की नाम का कोई प्रकार का है नहीं। मैंने यहाँ से पहलगाम के लिए टिकट कटवाया है। कोई भी जगह कोई गाड़ी का नंबर नहीं लगा है और कोई सीरियल के हिसाब से कोई गाड़ी रखी नहीं है। मैं पिछले 1.5 घंटे से ढूंढ रहा हूँ बस के, लेकिन बस मिल नहीं रही है। ये प्रशासन की निष्फलता है और कोई भी प्रकार की यात्रियों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध है नहीं। यात्री काफी परेशान है और कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ है नहीं। बस यही मेरी फरियाद है। बस यही मांग करना चाहते हैं कि यात्री की सुविधा के लिए कम से कम एक टेबल तो लगाया जाए, एक प्रशासन का अधिकारी बैठा जाए जो केवल यात्रियों की मदद के लिए खड़े रहे वहाँ पर। बस यहाँ से वहाँ ढूंढ रहे हैं लेकिन कहीं बस किसी को मिल नहीं रही है। Candidates of Finance Account Assistant also demonstrated on the 6th day in Jammu regarding their demands. The protesters expressed their anger by raising slogans. The protesters said that they had studied for this examination after spending many years and in the end they are being told that it will be scrapped, which is absolutely not justice. They expressed their displeasure over this. They said that they have not yet received this. It has not been clarified what is being done in this context. The government made only one tweet in which nothing has been told clearly. They demanded that
action should be taken against the culprits, but the list should not be scrapped. It is worth mentioning that yesterday it was tweeted by the state government that the committee constituted under the chairmanship of Chief Secretary is examining the selection list of finance account assistant. Action will be taken on the basis of report of the committee. Let us tell you that recently a list of 972 candidates for finance account assistant was released, on which questions were raised. There were allegations that irregularities have been made in the list, after which the committee is investigating on other points including the list. नहीं सर, अब ये तो नहीं बोल सकते कि हमारी कहीं पे आवाज़ नहीं पहुंच रही है या कोई हम लोगों को कंसीडर नहीं कर रहा है। डेफिनेटली कल के ट्वीट के बाद हमें ये तो पता एश्योरेंस मिल गया है कि कहीं ना कहीं हमारे बारे में बात तो चल रही है, बिकॉज हम कोई भी हमारी जो डिमांड है वो बिल्कुल जेन्युइन है कि हम लोगों ने जो मेहनत की है हमें बिल्कुल उसी का फल चाहिए। तो सर ये नहीं अब बोल सकते कि हम लोगों को कोई कंसीडर नहीं कर रहा, डेफिनेटली इस बारे में बात तो हो रही है सर। एंड बट जो उन्होंने ट्वीट किया है सर, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक सा ट्वीट है। हम इसको ये भी समझ सकते हैं कि शायद हम लोगों को उठाने के लिए बोल रहे हैं कि, बट सर हम चाहते हैं कि अगर इंक्वायरी होती है किसी भी तरीके की, वी आर डेफिनेटली रेडी फॉर दैट, बट इंक्वायरी में सर जो बोला गया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, बट सर द क्वेश्चन हियर इज द फॉर whom द स्ट्रिक्ट एक्शन इज फॉर whom। अगर स्ट्रिक्ट एक्शन सिर्फ और सिर्फ कल्प्रिट्स के लिए है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सपोर्ट देम, बट अगर स्ट्रिक्ट एक्शन सबके अगेंस्ट है, यानी कि लिस्ट को जो है कहीं ना कहीं स्क्रैप करने की कोशिश की जा रही है, तो सर फिर तो हम जो है ये अपनी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, हमारे ये कंटिन्यू रहने वाला। आज 6 दिन से लगातार हम यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक एक सिर्फ ट्वीट मिला कल शाम को हमें। उस ट्वीट में सर ये चीज़ क्लियर अभी तक भी नहीं हुई है कि स्क्रैप होगा या नहीं होगा। हमारी लड़ाई स्क्रैप के खिलाफ है, स्क्रैप नहीं होना चाहिए सर। बाकी जैसा उन्होंने कहा, हम पहले से वही चीज़ रिपीट करते आ रहे हैं कि हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, आप आके इन्वेस्टिगेट कर लो। लेकिन हम उनसे यही गारंटी ले रहे थे कि सर आप एक ऐसी गारंटी दे दो कि ये लिस्ट स्क्रैप नहीं होने वाली, लेकिन ऐसा सर उन्होंने स्क्रैप वर्ड अभी तक वहाँ पे यूज़ नहीं किया। एक ऐसा वर्ड चाहिए था हमें जिसके थ्रू हमें ये क्लियर हो जाए कि वो स्क्रैप इस लिस्ट को नहीं करने वाले हैं। आज हम अपने घरों में बैठे होते, लेकिन 6वां दिन है सर, आज फिर मजबूर किया जा रहा है, धूप में आके बैठे हैं। सेम हमारे लोग कश्मीर में बैठे हुए हैं, कल के दिन भी उन पर लाठीचार्ज हुआ। सर ये प्रॉब्लम जो है ये डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। कल लोगों को उकसाया गया, वहाँ पर भी लाठीचार्ज भी किन लोगों पे, जो लोग 2 साल की मेहनत करने के बाद आज मतलब पहली बार सड़क पर आए हैं सिर्फ इसलिए कि अपना हक मांगने, वो अपने 2 साल की मेहनत का रिजल्ट मांगना है आज यहाँ पर, उन पे लाठीचार्ज हुआ। फिर शाम को इन्होंने ट्वीट करा, वो ट्वीट बिल्कुल क्लियरेंस नहीं दे रहा सर। अगर आप उस ट्वीट को ध्यान से पढ़ेंगे आप भी देखेंगे कि उसमें इंक्वायरी के रिगार्डिंग बात की गई है कि इंक्वायरी बिठा दी गई है, और आर.के. गोयल सर मतलब जो उन्होंने चेयर करने के लिए बोला उन्हीं को बोला गया। लेकिन सर हमारी जो फाइट है वो स्क्रैप के अगेंस्ट है, चाहे कोई भी रिक्रूटमेंट है। आने वाले टाइम पे अगर आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसमें भी यही चीज़ चलती रहेगी। कोई फिर गारंटी नहीं लेने वाला सर कि हम जो ये हार्ड वर्क कर रहे हैं इसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा और कैसा रहेगा। BJP General Secretary Ashok Kaul visited Kupwada and held a meeting with the workers of 6 constituencies of Kupwada at Dag Bungalow, Kupwada. During this, he urged the workers to strengthen the party more and go from village to village with the administration and take cognizance of the problems of the people and also solve them. He said that under the BJP government, people would not have to face any kind of trouble. आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 9 तारीख से 15 तारीख तक हर घर में तिरंगा लहराएगा। उसके बाद उपरांत प्रभात फेरी निकाली जाएगी, पोस्टर बैनर्स हर घर में लगेंगे हमारे। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके आज तय किया है कि इस अमृत महोत्सव में भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला की ओर से बहुत ही शानदार कार्य होना चाहिए। आज बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी से नेता पूर्व मंत्री आदरणीय प्रिय सेठी जी, मेरे दोनों महामंत्री कुलदीप कंधारी जी, अंकुश गुप्ता की, तीनों मंडलों के अध्यक्ष प्रवीण खेली जी, नीरज लखीपुरी जी, भारत भूषण जी, मोर्चों के जिलाध्यक्ष और सभी जिनको हमने प्रभारी बनाए उनके साथ बैठक करके तय किया कि इस हर घर तिरंगा में जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें हम सभी कार्य शामिल होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष होने के नाते इनका सब आभार प्रकट किया है, जो पूरे में कार्य किए हैं और जो आने वाले कार्यक्रम है उन पर चिंता की गई। और भारतीय जनता पार्टी सभी जिन्होंने प्रभारी बनाया है सभी ने आश्वासन दिया कि इस अमृत महोत्सव का बहुत बढ़िया शानदार तरीके से निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला की तरफ से
मैं उनका आभार करता हूँ। जय हिंद जय भारत। Secretary Planning, Development and Monitoring Dr. Raghav reached today at the langar set up by the Mahajan Sabha. He met with the members of the Mahajan Sabha and also took stock of the langar. On this occasion, he himself distributed langar among the devotees. The members of the assembly thanked Dr. Raghav Langar for coming here. He said that this langar is running for the last 22 days and it is his endeavor to provide all necessary facilities to the devotees. On this occasion, Raghav also appreciated the Mahajan Sabha for organizing this langar and said that the administration is thankful to the Mahajan Sabha for this. ये लंगर जो है पिछले 22 दिन से लगातार चल रहा है और इसमें सभी यात्री जो भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, जहां पर अपने आप को रजिस्टर भी करवाते हैं और प्रसाद जो है बरादरी की ओर से वो लेकर के जाते हैं। बरादरी के समाज के सभी लोग जो है इसमें सहयोग कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर के सहयोग कर रहे हैं। मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है। मैं समझता हूं कोई भी कार्य, ईश्वरीय कार्य जो है वो समाज के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। हम लोग जो है उसी ईश्वरीय कार्य को पूरा करने के लिए जो महानगर के अंदर बाहर से आ रहे हैं लोग, उनका वेलकम करने के लिए जहां पर जो है वो लंगर का आयोजन करते हैं और मेरे साथी कुलीग और सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट सब मिलकर के हम इस कार्य को संपन्न करते हैं। मैं सबका ही एक साथ जो है वो धन्यवाद करता हूँ। जी देखो, अज मैं महाजन बरादरी की तरफों अज इधर आए दा सी ते न्योते उपर महाजन सभा जेड़ा अच्छा काम इधर हुआ है तो बेहतरीन काम पिछले 10 साल तो भी ज़्यादा महाजन सभा जी है, सेंट्रल महाजन सभा प्रधान जी इधर न, वाइस प्रेसिडेंट साहब न, जनरल सैकटरी साहब न, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ न, सारे पदाधिकारियों का पूरी सरकार की तरफों मैं शुक्रिया अदा करना कि इन्ना अच्छा भव्य इंतजाम तुस दिखाते हो सारे यात्रुओं वास्ते इधर किते दा है। जेड़े भी टोकन लैन वास्ते इधर आते हैं उनकी फुल प्रूफ रजिस्ट्रेशन होआ दी है, मेडिकल चैकअप होआ दा है अंडर वन रूफ, फिर उन्होंने पर्ची जारी हुई है, RFID कार्ड भी इधरों मिला दा है, कन्ने ऑलमोस्ट 1000 के करीब यात्री जेड़े ने उनके वास्ते लंगर भी चला दा है और पूरी तुस दिखाते हो सुविधा इधर पानी, पैक्ड वाटर कन्ने पूरा रोटी सवेरे 5 बजे का जोड़ा है वो लंगर शुरू होता है, चाह रस तो सारे यात्रियों वास्ते पूरी सुविधा मिला दी है इन द हार्ट ऑफ द टाउन। तो ऐसे 30 के करीब होर सेंटर भी चला देन पूरे जम्मू शहर तो मैं समझना कि पूरे जम्मू वासी और सारी जी ये ऑर्गेनाइजेशंस न, NGOs न, जी रिलीजियस सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस न जी ये चलांदियां यात्रियों का स्वागत करदियां, ये साडी पहचान है और जम्मू वासियों की खूबी रही है यात्रा की इसी स्वागत करने दी और सारे लोग इधरों सुखी तरीके करने जान अगे अपनी यात्रा संपन्न करन और वापस भी आइए जोड़ा उनका स्वागत इधर होता है। तो मैं समझना कि ये सरकार के एफर्ट्स की कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट पूरा कराता है और सेंट्रल महाजन सभा के इस एफर्ट के बिना जोड़ा है वो पूरा सिर्फ सरकार के वास्ता नहीं है, इन्नी बड़ी यात्रा चला। National Conference senior leader Mustafa Kamal took a jibe at the BJP and said that Kashmir turned into a military garrison and the withdrawal of Article 370 and abrogation of 35A has betrayed not only the people of Jammu and Kashmir but the people of India. He also said that BJP has done good work in the whole country. Communalism has been spread. That's why some idols are going away, some mosques and some people heads are being beheaded, which is not right for India. जब से 2019 में यहाँ मरकजी हुकूमत कायम हुई और उन लोगों को फाइज कर दिया गया उन कुर्सियों पे जिन पे सिर्फ इलेक्शन से जीतते हुए जो लोग हैं वो आते थे, वो कुर्सियों पर बैठते थे और फिर एक ऐसा चक्कर शुरू कर दिया कि आए दिन नई बातें करते हैं लेकिन ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं हुआ है। हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ेह कर दिया, जहाँ जहाँ भी दिल्ली में भी कहा ये बातें करते हैं आप, कुछ हुआ नहीं। जो सितम बर सितम हमारे हिंदुस्तान के दाखिला वजीर अमित शाह जी ये बड़े फख्र से कहते हैं कि 70-80 साल वाले पुराने कानून हमने बदलाए हैं, ये बड़ी उपलब्धि है। कानून हटाने के लिए अगर सारे हिंदुस्तान के आप लोगों ने कोने कोने कोचे कोचे में
फौज बिठा रखी है। पुलिस तो अलग बात है, पुलिस तो पहले से ही थी। अब जहां जाइए आप, वहां पर आपको फौज मिल रही है। मस्जिदों के बाहर, स्कूलों के बाहर, दुकानों के बाहर, सड़कों पे किस जगह नहीं है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सारी फौज इधर ही बिठा रखी है। तो चाहिए था, अगर आपने ये कानून बदलाए, आपने इस पे बहस करने की इजाजत पार्लियामेंट में क्यों नहीं दी? आपने हमारे कदावर लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को घर में नजरबंद क्यों किया? वजीर खारजा हो, वजीर होम मिनिस्टर हो, और इस लिहाज से जो है आप इस किस्म का रवैया मत कीजिए। आपके इस रवैये से फिरका परस्ती की बू आ रही है जो हिंदुस्तान को तबाह करेगी, पहले ही तबाह कर चुकी है। और इस वक्त जो हो रहा है वो आपके इन बयानात की वजह से किसी न किसी जगह किसी का सर काटा जा रहा है, किसी को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, किसी की मूर्ति तोड़ी जा रही है। ये आपकी सियासत की वजह से ये चलने वाली बात नहीं है। आप सही रास्ते पे आ जाइए। आप उस कुर्सी पे बैठे हैं जिस पे आपने इंसाफ करना है। Development works were started in Ward number 51 of Jammu today. The work was inaugurated by Raj Kumar, Chairman of Health and Sanitation Committee of Jammu Municipal Corporation. Ward President Jagdish Raj and other dignitaries were also present with him on this occasion. Raj Kumar said that there was a long demand of the people in view of which this earning has been started. He said that the development work will be continued in the same way in future also. सेक्टर 1 ने मतलब भक्तपुरा में आज हमने गली का काम शुरू किया। ये बहुत ही पुरानी डिमांड थी लोगों की, लेकिन किसी कारणवश हम इसको पीछे पूरा ना कर पाए, लेकिन आज हमने इसको शुरुआत इसकी की है। लेकिन मैं चाहता हूँ और भी कहीं किसी को कोई गली की नाली की प्रॉब्लम हो वो हमें बताएं, ताकि हम उनकी भी जो प्रॉब्लम है पूरी हल कर सकें। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे सामने रखा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी को हम साथ लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमने इस गली का काम शुरू किया। लेकिन लोगों को अभी पूरी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इतनी स्कीमें लॉन्च की है, अगर पूरी ये पढ़ पाएँ, अवेयर हो जाएं, तो शायद इनको किसी भी काम की जरूरत पड़े तो उसी स्कीमों में ये हो सकती है। जैसे कि विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, जन धन योजना और कितनी सारी स्कीमें जो लॉन्च की हैं, ये सारी ही गरीबों के लिए उन्होंने लॉन्च की हैं। लेकिन देश के पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनको गरीबों की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो भी कार्य किया है गरीबों के हित के लिए है। इसलिए गरीब जितने भी हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं वो सारे के सारे प्रधानमंत्री के साथ अब कर रहे हैं। अब दूसरी पार्टियां जो हैं बिल्कुल परेशान हो गई हैं। COB Ramnagari of 15 Dhawal Rifles organized a free medical cum veterinary camp at Tanwarg Aharbal in Shupian and Kulgam to solve the medical problems of the local population and to spread awareness on the importance of cleanliness. Keeping in view the demands of the local population, the camp was organized during which the far-flung areas of Shupian and Kulgam districts were involved. At the same time, the local people expressed their gratitude to the army for this camp. दूर दराज इलाके से जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि हम शुक्रगुजार हैं कि आर्मी के 15 गढ़वाल जो कैंप इनके हैं, इन्होंने यहाँ पे आज कैंप लगाया हुआ है, लोगों को मुफ्त दवाइयाँ दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा कदम है। और लोग जो बैकू में थे वो भी आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ अस्पताल नज़दीक नहीं है, यहाँ पे कोई डॉक्टर नज़दीक नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि पूरी कौम यहाँ पे आई हुई है और इन्होंने बड़ी मेहनत से 3 दिन से ये एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हम कैंप लगा रहे हैं यहाँ पे। और 3 दिन के बाद आज अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने ये कैंप लगाया। और यहाँ की जितने भी लेडीज़ लोग थे या जेंट्स थे या बच्चे थे, जितने भी बैकों से आए लोग और इस गांव के खासकर लोग जिन्होंने दवाइयाँ यहाँ पे मुफ्त ली, वो सब लोग और उनके बगैर यहाँ पंचायत हर एक इनका शुक्रगुजार है कि
इन्होंने लोगों को दवाई देकर मजबूर। A meeting was organized under the chairmanship of District President Vinay Gupta at BJP District Office, Kachi Chhawni Cantonment, Jammu. A large number of BJP leaders and workers attended the meeting. Many issues were discussed in the meeting and BJP workers were apprised about upcoming programs. On this occasion, Vinay Gupta said that such meetings are organized to discuss upcoming programs. आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 9 तारीख से 15 तारीख तक हर घर में तिरंगा लहराएगा। उसके बाद उपरांत प्रभात फेरी निकाली जाएगी। पोस्टर बैनर्स हर घर में लगेंगे हमारे। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके आज तय किया है कि इस अमृत महोत्सव में भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला की ओर से बहुत ही शानदार कार्य होना चाहिए। आज बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी से नेता पूर्व मंत्री आदरणीय प्रिय सेठी जी, मेरे दोनों महामंत्री कुलदीप खंडारी जी, अंकुश गुप्ता की, तीनों मंडलों के अध्यक्ष प्रवीण खेली जी, नीरे लक्कीपुरी जी, भारत भूषण जी, मोर्चों के जिलाध्यक्ष और सभी जिनको हमने प्रभारी बनाया उनके साथ बैठक करके तय किया कि इस हर घर तिरंगा में जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें हम सभी कार्य शामिल होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष होने के नाते इनका सब आभार प्रकट किया है जो पूर्व में कार्य किए हैं और जो आने वाले कार्यक्रम है उन पर चिंता की गई और भारतीय जनता पार्टी सभी जिन्होंने प्रभारी बनाया है सभी ने आश्वासन दिया कि इस अमृत महोत्सव का बहुत बढ़िया शानदार तरीके निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला की तरफ से मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद जय भारत। Sajad Lone slams PDP over Rubia Saeed case, saying that Yasin Malik deserve a fair trial just like Priyanka Gandhi forgave her father's killers. Mufti should also forgive Yasin Malik and Rubia Saeed kidnapping case. देखो यार, मैं आपको बात बता दूं, नॉर्मली मैं पर्सनल मामलात में कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन एक बात है कि कहीं ना कहीं यासीन मलिक जो है हमारा लाख डिसएग्रीमेंट हो, बट ही डिजर्व्स अ फेयर ट्रायल। ही डिजर्व्स अ ट्रायल जहां वो अपना पक्ष भी रख पाए। वन साइडेड जस्टिस तो हो नहीं सकता है, राइट। जहां तक महबूबा जी का सवाल है तो मैंने जैसे बोला कि इनका पर्सनल मामला है, लेकिन है एक रियलिटी कि महबूबा जी ही रिकन्सिलिएशन का एडवोकेट थी कि पाकिस्तान से बात की जाए, सईद सलाउद्दीन से बात की जाए, मिल्टन सी से बात की जाए। तो जब हम वो चीज़ें रखते हैं तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं उनकी जगह होता इतनी बात करने के बाद मैं शायद वो वाला दूसरा मॉडल अख्तियार करता। जैसे प्रियंका गांधी साहिबा थी तो उन्होंने अपने वालिद के कातलों को माफ़ कर दिया, तो वो तो मतलब अपने वालिद के कातलों को माफ़ किया। और कहाँ, वो तो किडनैपिंग थी, हालांकि बहुत गलत थी, हम कंडेम करते हैं उसको, लेकिन शायद इन द स्पिरिट ऑफ रिकन्सिलिएशन, गिवन कि उनको पहले ही एक उम्र कैद लगी हुई है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई और भी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। और मुझे लगता है कश्मीर के लोगों को भी देखना चाहिए कि हकीकत में क्या यहाँ कोई मेन स्ट्रीम पार्टी सही माने में रिकन्सिलिएशन चाहती है या सिर्फ बातें करना चाहती है। यार हम क्या करें, अब ये देखिए, ये एक अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन है और अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है, फिर आगे नीचे ब्यूरोक्रेट हैं। उनको लगता है कि वो मतलब अल्लाह ताला ने जैसे कि कोई मिन्नत रखी है कश्मीरियों पर कि उनको यहाँ भेजा हुआ। दे थिंक दे आर द लास्ट अथॉरिटी ऑन अर्थ, that they are doing a very good job, which I don't think they are। लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं इसमें, हम आवाज़ उठा सकते हैं और हम जैसा कि आपने बोला कि हम बिल्कुल इसमें आवाज़ उठा सकते हैं। सिर्फ हर चीज़ पुरानी कयातों पर डालना कि भाई पहले चोरी होती थी अब नहीं होती है, पहले स्कैम होते थे अब नहीं होते थे, उससे काम नहीं चलेगा। इस सरकार को देखना चाहिए कि इनके स्कैम्स का भी शायद अब जो है बांडा फूटने लगा है। क्या आपको लगता है सर कि ये राइट टाइम है इलेक्शंस करवाने का यहाँ पर, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर कोई नहीं सुनता? देखो, जब तक मुझे जो लगता है कि यहाँ स्टेक्स इतने बढ़ गए हैं इलेक्शन न होने में, मुझे नहीं लगता यहाँ की ब्यूरोक्रेसी कभी इलेक्शन होने देगी, मुझे नहीं लगता। Thank you. After Bandipora, the administration has also made the use of mask mandatory in public places in Ganderbal with immediate effect. In the interest of health and well-being of the general public, Farooq Ahmed Baba, JKAS CEO District Disaster Management Authority, Additional District Magistrate Ganderbal under Section 34 of the Disaster Management Act, ordered that the use of masks at public places in District Ganderbal use will be mandatory so that the corona epidemic can be defeated.
Municipal Council Kulgam installed modern bio-toilet system near Clock Tower of Kulgam. A 10-room bio-toilet system has been installed in which 5 rooms are for women and 5 for men. During this, Municipal Council President Kulgam Munib Ahmed Zargar, Deputy Superintendent Headquarters Kulgam GM Bhatt, Executive Officer Kulgam Mohammad Irfan, Vice President and other officers were also present there. यहाँ पे दीरीना एक डिमांड थी लोगों की कि यहाँ पे जो घंटाघर के इर्द गिर्द कोई भी बैतुल खुला नहीं था, जहाँ पे हमारी माँ बहनों को भी दिक्कतें दुश्वार होती थी और आम नागरिक को भी बड़ी दिक्कतें आती थी, क्योंकि अगर किसी को हाजत बशरिया की ज़रूरत होती तो यहाँ पे कोई यूरिनल नहीं था। तो मैंने इसमें बहुत सारी कोशिशें की, अल्लाह ने मुझे उस कोशिश में कामयाब किया। मेरे जितने भी लोग हैं उन्होंने बार बार मुझे यही बोला था कि ये हमारी एक दीरीना डिमांड है जो आज तक पूरी नहीं हुई है, तो अल्लाह के फजल व करम से ये डिमांड मैंने आज पूरी की। अब लोगों से भी यही इल्तिमास करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये उनकी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे टॉयलेट ब्लॉक हमने रखा 10 सीटर, जिसमें 5 वुमेंस के लिए है और 5 मेंस के लिए है। ये आप लोगों की प्रॉपर्टी है, आपको चाहिए कि आप इस प्रॉपर्टी का खुद ध्यान रखें ताकि इसमें कोई नुकसान ना आए। साथ साथ हमने और एक इनिशिएटिव यहाँ पे कुलगाम में लिया था, वो मैंने पहले से एक ठान ली थी कि हम कुलगाम को जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल निकलता है, यानी कि डस्ट वगैरह होती है, यहाँ पे आलूदगी फैली हुई है, हम कुलगाम को नीट, ग्रीन और क्लीन करेंगे। उसके लिए आज हमारे पास 13 गाड़ियाँ हैं। So that's all for today's bulletin. Keep watching JKC's English Bulletin. Take care.